Hi guys, good morning and happy Holi. So कल मैं मसूरी पहुंची right and I had checked into that hotel but check in तो कर नहीं पाई क्योंकि I reached around 6:30 and room मुझे मिल रहा था 12 बजे and I was dog tired because I had not slept the whole night क्योंकि बस से आई थी ना दिल्ली से. So I had breakfast and even after 9 in the morning I did not get the room right. So I thought कि भैया ये तो हो नहीं पाएगा. I was about to drop dead honestly. I was like already feeling like चक्कर वगैरह आ रहे थे तो I had to forfeit the advance that I paid them और मैंने अपना सूटकेस उठाया और मैं निकल गई वहां से. I started checking मॉल रोड में 2-3 होटल्स की जहाँ भी अच्छा लगे and I could crash. तो I searched 2-3 होटल्स में I searched but एक अच्छा लगा तो then I just went and वहाँ पे सिर्फ रूम ऑनली था. So I thought I don't care, let me just crash because I need to sleep. So ठीक था because it was right on the main road and उसके ठीक नीचे ना there's this cafe which is a very famous cafe कि मैंने search भी किया था कि where do I go for breakfast and even Google suggested Cafe Hinge but surprisingly it was just below my hotel. So I came here for breakfast and honestly I quickly wanted to tell you guys कि यहाँ पे तो आपको आना ही है. Whoever comes to Mussoorie, don't miss to come and have food at Cafe Hinge. They have an extensive breakfast menu also. I wanted tacos. It's mainly like an Italian and Mexican food है. Very nice cafe, very nice, cute, little, tiny and extremely vibe. बहुत अच्छा है यहाँ का. और मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया सॉसेज सैंडविच और उसमें they gave me bread also sides के लिए. So it's a full breakfast for one person and tea of course and sorry coffee भी अच्छा है. So I think that is what is it and the day has started and बाहर obviously होली वगैरह खेल रहे हैं. I'm not much of a होली person but the owner of the hotel जहाँ पे मैं रुकी हूँ he turned out to be from Delhi only. So we chatted a while and the conversation started and all. तो उन्होंने फिर होली थोड़ा सा लगा दिया था. Like do you play होली? I said no I don't. तो like organic है थोड़ा सा लगा लो. मैंने कहा okay. तो उन्होंने लगा दिया था but हाँ that's how it is and I think I'm liking this decision of getting out of that hotel क्योंकि hospitality था ही नहीं. I mean थोड़ा सा होता है ना वरना कि I've traveled so much and I've stayed in so many hotels. वो दे देते हैं होटल रूम्स if it is vacant and even if मतलब और यहाँ पे vacant भी था I suppose but they were just too adamant कि नहीं 12 बजे है तो 12 बजे मिलेगा and I reached at 6:30 so I thought कि यार ये तो नहीं हो पा रहा let it be. I forfeit the money. आप रखो advance. I have to go out and look and that is another thing if you're coming from Delhi and all and अगर आप बस से आ रहे हो if you're reaching very early ना you might not get the hotel before your check-in time which is usually at 12 right so you have to be careful. और मेरा एक्सपीरियंस तो यही बोलता है कि आप आके यहाँ पे आके अगर आप ढूंढोगे होटल तब भी आपको मिल जाएगा. यू कुड rather search go and check the rooms yourself कि कौन सा होटल का कौन सा रूम अच्छा लग रहा हो then you check मिल जाता है. there's no fuss, there's no सस्ता ही मिलेगा in fact rather than going ahead and getting into from the website. आके होटल में डायरेक्ट जाओगे मिलेगा. that is not a problem at all. that's my first hand experience. पहली बार किया है मैंने ये और मुझे तो सही लगा. so I think when I travel if by bus this is what I'm gonna do. I'm not gonna book a hotel. I'm just gonna go and search and then check in जो भी अच्छा लगता है. At least that's what I have experienced. So that's what I'm suggesting to you guys also. So okay, let me finish my breakfast. आधा तो खा चुकी हूँ because I was very hungry right now. Let me finish my breakfast and अभी तो मेरा mall road में ही है. There's nothing much to do. I'll just like enjoy my time, just do some cafe hopping and relax I guess. So again, happy Holi to all of you and a sausage sandwich which I got with sides and dip and cappuccino. So it was full and really nice breakfast early in the morning. Amazing honestly. So that is the inside view of Cafe Hinge. काफ़ी अच्छा था और वैसे होली था तो सारे दुकानें भी बंद थे. एटलीस्ट ये खुला रहा था एंड आई गॉट अ नाइस ब्रेकफास्ट. और मैं अकेली थी क्योंकि लोग बाहर बहुत ज़्यादा होली मना रहे थे. आप देख सकते हो यहाँ पे है ना गाड़ियाँ मतलब चलने के लिए मतलब रोड खाली नहीं था बहुत ज़्यादा. ये जो एरिया है दिस इज़ द पिक्चर गैलरी और यहीं पे मेरा होटल है. तो पूरा रोड ब्लॉक और बहुत ज़्यादा मस्ती से होली मना रहा था पूरा मसूरी में. सब कुछ ही बंद है वैसे अभी तो. आई वाज सिटिंग एट हिंज कैफे हिंज
for a very long time. मतलब वहाँ बैठ के I was just checking out the people play Holi and all. It was pretty nice. You look at people enjoying. It's more like contagious. आप खुद भी enjoy करने लग जाते हो. So अभी तो सब कुछ बंद है. But yeah, people are playing Holi and बहुत ही सही है वैसे. अभी देखते हैं. I had a nice heavy breakfast. अभी ऐसे ही स्क्रॉल कर रही हूँ. सारी दुकानें भी बंद ही लग रहा है. But देखते हैं आगे. I'll just do cafe hopping. आज मैंने यही सोचा है कि small bites and so that I could cover more of the cafes. क्योंकि एक बार पेट भर गया तो फिर खा नहीं सकते ना. तो छोटा छोटा खाओ and so that you could cover more of the cafes. That's what is the plan. अभी तो I'm walking. Let's see. आगे जाके देखते हैं कि क्या मिलेगा. So I'm out of Cafe Hinge and in search for tea क्योंकि वहाँ पे मैंने कॉफ़ी पिया, वहाँ चाय नहीं था. और मैं सोच रही हूँ कि चाय तो बनता है राइट. दिन का शुरुआत तो चाय से ही होता है. एटलीस्ट मेरा तो आई हैवंट ड्रैंक टी सिंस मॉर्निंग. और हेवी ब्रेकफास्ट तो कर लिया था. बट आई जस्ट लाइक स्ट्रोलिंग अराउंड द मॉल रोड. कल मैंने कंप्लीट मॉल रोड तो मैं घूम भी नहीं पाई थी. तो आई थॉट कि आज मैं नीचे तक जाते. काफ़ी लंबा, हाँ मतलब 2-3 किलोमीटर का तो होगा शायद. आई डोंट नो. बट हाँ, क्योंकि मैं चल रही हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है. तो एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल. शॉप्स तो सारे क्लोज्ड हैं बिकॉज ऑफ होली. एंड पीपल आर सेलिब्रेटिंग होली लाइक क्रेजी. बहुत ज़्यादा पीपल आर रियली एंजॉयिंग. ये देखो पीछे भी आ रहे हैं. देयर आर लाइक a lot of people playing होली एंड ऑल. बट यहाँ पे पीछे दुकानें हैं. मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे शायद मुझे चाय मिलेगा. आई जस्ट वांट टू ड्रिंक टी. अभी मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए चाय. एंड द इंटायर सराउंडिंग इज़ वेरी नाइस. सो दैट इज़ व्हाट आई एम रियली एंजॉयिंग. लेट्स गो एंड चेक आउट कि मुझे चाय यहाँ पे मिलता है अगर तो. सो मुझे फाइनली चाय मिल गई है. दीदी को पूछा मैंने चाय मिलेगी, कहते हाँ. तो मैं पीऊँगी चाय अच्छे से. आई रियली डेस्परेटली नीड टी. अब बस बना दे फटाफट से, मैं चाय पी लूँ और मेरा दिन शुरू करूँ. अगर आप चाहो तो यहाँ पे ना ये भैया है, मुझे कल से बेच रहा है कि ये आप कितना लगता है इसका? ये 300. अच्छा, ये ड्रेसेस पहन के आप फोटो खिंचवा सकते हो. ये ड्रेस का 300. इस वाले का अलग अलग ड्रेस का अलग अलग कॉस्ट होगा ना सारे का. तो 300 ड्रेस के साथ फोटो के साथ मिलेगा. अच्छा, फोटो ड्रेस के साथ फोटो खिंचवा के फोटो आपको मिलेगा अभी 300 रुपये में. तो अगर आपको यहाँ पे आके मॉल रोड में ही है, यहाँ पे अगर खिंचवाना हो तो कर सकते हो. ठीक है, ऑलराइट. पुलिस चौकी देखो यहाँ का कितना अच्छा सा स्टोन आर्किटेक्चर में बना हुआ है. काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये देख के. पूरा मॉल रोड घूम चुकी हूँ. ऑल द शॉप्स आर क्लोज्ड. ठीक है ना. फूड जॉइंट्स भी क्लोज्ड है. काफ़ी थोड़े बहुत खुला है. पर ये तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा पुलिस चौकी का आर्किटेक्चर. सो लंच के बाद मैं निकली हूँ गन हिल व्यू पॉइंट. तो गन हिल जो है वो मसूरी का सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है राइट. यहाँ पे आप रोप वे के थ्रू जा सकते हो. ये आपका मॉल रोड में ही इसका पॉइंट है. यहाँ से रोप वे का कॉस्ट होगा 220 रुपये. तो जिसमें राउंड ट्रिप होगा. तो ये रोप वे आपको ऊपर लेके जाएगा और ये नीचे भी लेके आ जाएगा आपको उसी टिकट में से. आई हैव कम टू गन हिल. सो गन हिल में आने के लिए ना रोप वे है नीचे मॉल रोड से. एंड द 2-way टिकट विल कॉस्ट यू 220 रुपीज़. ठीक है, जिसमें आपको वो लेके आएंगे एंड दे विल ड्रॉप यू मॉल रोड में ही. सो ऊपर दिस इज़ आई थिंक द सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट इन मसूरी आई सपोज. और यहाँ से व्यू है. इट्स मोर लाइक अ व्यू पॉइंट. इट्स ब्रीजी ऑल्सो. जैकेट थैंकफुली मैंने रखा हुआ है वरना ठंड लग जाता है एक्चुअली. सो शॉप्स आर प्रीटी मच क्लोज मे बी बिकॉज इट इज़ होली. तो आई थिंक 40% के करीब ही खुला हुआ है. आई शो यू द शॉप्स ऑल्सो ना. काफ़ी छोटे छोटे शॉप्स हैं यहाँ पे राइट. एंड इट्स लाइक अ सर्कल में है सारी चीज़ें. और क्या करना है, आई विल जस्ट रोम अराउंड एंड देखते हैं और क्या क्या है. एंड आई शो इट टू यू गाइज ऑल्सो. सो हैंग अराउंड. सो ये
देखो गन पॉइंट, व्यू पॉइंट, ये सारे आई थिंक यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह, आई थिंक यू कैन टेक पिक्चर्स शायद, हाँ फोटो सर्विस है, काफ़ी सारी चीज़ें तो बंद ही है यहाँ पे। ये रहा रोपवे का, यहाँ से हम निकले थे। अब यहाँ पे घूम के वंस वी आर डन, आई थिंक यू नो वहाँ से फिर से रोपवे लेके नीचे जा सकते हैं। आगे देखते व्यू थोड़ा। ये शॉप खुला है, ऊपर भी है। ब्यूटीफुल राइट। मोस्टली दुकानें तो बंद है, बट कैफ़े भी है, कैफ़े एप्पल्स आगे दिख रहा है मुझे। तो ये है, नहीं सर फ़ोटो नहीं चाहिए, आस्किंग मी फॉर फोटो, यू नो। ये देखो कितना का 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ में यहाँ पे कपड़े पहन के आप फ़ोटो खींच सकते हो, वो आपको भेज देंगे आपके मोबाइल में। दैट इज़ व्हाट ही सेड राइट। और बहुत सारी फ़ोटो सर्विसेज है, खाने पीने की दुकानें हैं, कुछ ख़रीदना है छोटा मोटा कुछ ख़रीद भी सकते हो। सो यू नो देयर इज़ अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ऑल्सो। ये सारी चीज़ें हैं। मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर क्लोज, बट जो भी है हाँ यहीं पे है, यही है। बाहर भी जाके ना एक बार चेक कर लेते। अच्छा उस तरफ भी मुझे कुछ दिख रहा है, लेट्स गो टू द अदर साइड ऑल्सो। हाँ आगे भी है। यहाँ भी है, लेट्स सी। शॉप्स तो क्लोज्ड ही है। देयर सम हॉन्टेड हाउस ऑल्सो, पता नहीं क्या होगा इसमें। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी हॉन्टेड थिंग्स। गेम्स वगैरह भी है एंड अच्छा देयर इज अ मंदिर ऑल्सो। ओके बस इतना ही है, यू नो नॉट मच। बाहर की तरफ जाके थोड़ा सा देख लेते हैं। So I'm standing at the second highest, viewpoint at Gun Hill. तो फर्स्ट लाल टिब्बा है जो मैं कल गई थी, एंड आई हैव शोन दैट लाल टिब्बा ऑल्सो राइट कल वाले वीडियो में। आज जो है मैं हूँ अभी गन हिल। यहाँ पे आई केम वाया ये रोप वे के थ्रू, और यहाँ पे छोटा मोटा रेस्टोरेंट्स वगैरह है। दिस इज़ अ पॉइंट, इट्स अ व्यू पॉइंट राइट। ये सेकेंड हाइस्ट हिल है मसूरी का, आप देख रहे हो। अभी थोड़ा सा क्राउडेड है, वरना व्हाट ही वाज सेइंग इज द पर्सन हियर वाज सेइंग यहाँ से आपको ग्लेशियर वगैरह दिखेगा हिल्स का। तो अभी थोड़ा सा क्राउडेड है तो वो दिख नहीं रहा है, बट इट इज़ प्रीटी गुड राइट। इट्स नाइस, वेरी नाइस। सो आई जस्ट वांट टू सिट हियर एंड ड्रिंक टी एट लीस्ट। सो ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटा ऊपर गन हिल पॉइंट में स्पेंड करके मैं नीचे आ गई, एंड देन रेडी टू एक्सप्लोर मॉल रोड अगेन। बट इट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। भुट्टा खाने का बहुत टाइम से मन हो रहा है, तो मैंने इस लेडी को बोला है कि मुझे एक दे दो, यहाँ पे बैठ के मैं भुट्टा खाऊंगी। अब मैं निकली हूँ वापस से to venture out. Last night है आज मेरा, this is the second day, but I guess if you want to visit just Mussoorie, 2 days is more than enough, you know. 2 दिन से ज़्यादा कुछ करने को है भी नहीं। ये सारे shops दिन में closed थे because of Holi, but now all the shops are open and it is really vibrant. मतलब इतना crowd, कल भी इतना ज़्यादा तो crowded नहीं था, आज I am feeling कि कुछ ज़्यादा ही crowded है। एंड आई वॉन्ट टू हैव रामन, वो भी द कोरियन रामन, इसलिए मैं निकली हूँ। वही बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। सो इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग अलोन, यू विल नॉट फील लाइक अलोन टाइप का फील नहीं होगा, इतना ज़्यादा क्राउड है। लुक एट दिस। लेट्स गो। बैठेंगे भी थोड़ा देर, जस्ट लाइक चेकिंग आउट लाइफ पास बाय लिटरली। और
मुझे रामन खाना है, तो मुझे काफ़ी ऊपर जाना है। आई आइडेंटिफाइड वन प्लेस, मतलब देयर टू प्लेसेस जहाँ पे मैंने देखा कि रामन मिलता है, तो आई एम जस्ट वॉकिंग। I have easily yesterday I walked for like 14,000 steps जो मैंने देखा। आज अब तक I had reached like 9,600। तो अब मुझे लगता है शाम तक वापस से और easily I don't know how many thousand of steps that I will be covering, but you know, one thing you need to understand is you have to wear very comfortable shoes, wear sneakers। heels का तो ये road बना ही नहीं है। sneakers are the best, flats, comfortable flats, that's what you need to wear if you're coming to Mussoorie। ठीक है, हाथ नहीं लग गई ऑलरेडी। एनीवेज लेट्स गो अप, देखते हैं आगे। ये चिक चॉकलेट करके जो है इट्स अ कैफे, यहाँ पे मैंने देखा है कि रामन मिलता है एंड इट लुक्स नाइस राइट, काफ़ी क्राउडेड भी है। और इसके बगल में ही देयर इज वन मोर प्लेस, ये मैंने थोड़ा टाइम पहले देखा था, द तिब्बत कैफे करके। यहाँ पे कोरियन रामन मिलता है और ये भी काफ़ी क्राउडेड था। तो यू नो दीज आर लाइक टाइनी लिटिल प्लेसेस जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है। थोड़ा देर आई रोम अराउंड एंड आई थिंक यू नो यहाँ पे मुझे दिखा रामन बॉल, कोरियन रामन बॉल, दिस इज व्हाट आई वांट टू हैव। यहाँ जाऊंगी मैं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर थोड़ा सा नीचे तक जाते, वाइब थोड़ा फील करते एंड देन आई एम गोना कम अप and crash in one of those cafes and have my share of ramen। Yay! So, घूम के वापस आ गई थी और मैं गई अंदर चिक चॉकलेट, बट अंदर का हालत देखो, बिल्कुल भी जगह नहीं है। सो देयर इज नो पॉइंट, तो मैं निकल गई फिर यहाँ से। चिक चॉकलेट में तो मुझे जगह नहीं दिखा, अब ट्राई करते हैं द तिब्बत कैफे। लेट्स सी। यहाँ तो जगह है, आई गेस आई कैन सिट हियर। मुझे रामन मिला और टेस्टी है काफ़ी, बट यू नो द सर्विस इज नॉट दैट गुड, क्योंकि आई केप्ट वेटिंग यहाँ पे एंड देन इवेंचुअली आई गॉट टू नो कि ऑर्डर देना होगा चिक चॉकलेट में जाके एंड देन यू कम हियर एंड सिट, बिकॉज यू नो आई थिंक द ओनर इज सेम। सो सर्विस बहुत ही बेकार है, मतलब देयर इज नोबडी आस्किंग यू फॉर एनीथिंग एज सच, यू नो, सो इट्स लाइक सेल्फ हेल्प काइंड ऑफ थिंग। भले खाना अच्छा है बट द सर्विस इज नॉट गुड एट ऑल। So that's one thing that we need to know if you're coming here and you want to eat। आपको जो ऑर्डर देना है वो जाके चिक चॉकलेट में देना होगा, फिर आके आप तिब्बत कैफे में बैठ के खा सकते हो। That's what it is। सो आफ्टर डिनर आई वेंट बैक टू कैफ़े हिंज। वहाँ भी बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, बट मैंने एक कप कॉफ़ी एंड माई फेवरेट कुकी खा के देन आई एंडेड द डे। तब तक थोड़ा थोड़ा बारिश शुरू हो चुका था, you know, so I went back to my hotel and then I called it the day। That's how I ended my day 2। Good morning guys। कल रात से बारिश हो रही है मसूरी में, और कल तक तो बहुत प्लेजेंट वेदर था राइट, इट वाज सनी, आई वाज वेयरिंग टी शर्ट एंड, और आज इतना ठंड है। रात को यू नो आई वाज सो स्कैर्ड एंड ढंग से सो भी नहीं पाई, बिकॉज मे बी ऐसा लग रहा था जैसे यू नो देयर वाज सो मच ऑफ नॉइज, लाइक मे बी इट वाज लाइक हवा चल रहा था इतना हैवी आई गेस। तो मुझे लग रहा था मेरा बेड ही हिल रहा है, और there were a lot of noises, maybe because of the wind। I think बहुत तेज हवा चल रहा होगा रात को। I woke up around 3 o'clock and just waited कि सुबह कब होगा, और रात को तो मुझे ऐसा भी लग रहा था कि शायद earthquake आ गया, because my bed was like you know shaking। सुबह उठ के मैंने सर्च भी किया was there a earthquake in Mussoorie yesterday करके, but था नहीं। I don't know why I felt it was so scary। और अभी तो इतना ठंड है and luckily I've carried you know sweater and jacket, वरना तो जम जाती। और ऑब्वियसली 10:30 का बस है और बारिश भी बहुत हो रहा है, सो आई डोंट नो हाउ आई विल रीच, क्योंकि मॉल रोड में मेरा होटल है और यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स आना अलाउड नहीं है। सो आई विल हैव टू गो एटलीस्ट टिल द पिक्चर गैलरी जहाँ से मेरा पिकअप होगा। बट
लकीली द होटल इज़ नॉट दैट फार फ्रॉम पिक्चर गैलरी, बट फिर भी बारिश तो काफ़ी हो रहा है एंड इट्स क्लाउडेड, बिल्कुल भी धूप नहीं है आज. सो लेट्स सी, मुझे ब्रेकफास्ट के लिए भी जाना है. अगेन लकीली यू नो कैफ़े कैफ़े हिंज इज़ जस्ट डाउनस्टेयर्स, तो वहाँ जाके फिर से आई वांट टू हैव दैट अमेरिकन ब्रेकफास्ट with my favorite cookies and teas, coffee, sorry, tea नहीं मिलता वहाँ पे. Very good cappuccino. बारिश थोड़ी सी तो रुकी है बट अभी भी गिला ही है. और आज ना मैंने सुना कि आई थिंक रेड अलर्ट मार्क मतलब कि कर रखा है, क्योंकि कल रात को काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान आया था. सो मैं कैफ़े हिंज गई थी बट कुछ भी अवेलेबल नहीं था एंड दे सेड दे विल टेक टाइम एंड ऑलरेडी 9:30 होने वाला था. तो बगल में अगेन यू नो एक ढाबा टाइप का मुझे दिखा. सो आई केम हियर. एक कपल वाज देयर हु हैड ऑर्डर्ड पनीर पराठा. तो मुझे लगा कि यही खा लेती हूँ क्योंकि टाइम नहीं है. तो मैंने भैया को बोला कि मुझे भी बना दो, मेरे लिए भी पनीर पराठा ही खा लेते. तंदूरी पराठा बना रहा था और मैंने कभी खाया भी नहीं था ऐसे तंदूर में बना हुआ पराठा. हेल्दी होता है नहीं. सो आई थॉट कि यही खा के फिर निकल जाएंगे. सो दैट इज़ व्हाट आई डिड. सो गाइज अब मैं लाइब्रेरी चौक पहुंच गई हूँ एंड यहाँ से पिकअप है फॉर यू नो देहरादून. ये गांधी जी का मूर्ति के सामने बोला था एंड होटल शिल्टन फॉर्चून ग्रेस. आई एम वेटिंग फॉर द टैक्सी. यहाँ से द टैक्सी विल टेक मी टू यू नो देहरादून. फिर देहरादून से अगेन आई हैव अ बस. तो ये है आपका लाइब्रेरी चौक. यहाँ पे कोई लाइब्रेरी है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज लाइब्रेरी चौक. और ये हवा घर भी है. यू नो इट्स वेरी क्राउडेड. यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं. अभी देखते हैं, वेट कर रहे हैं. आई एम वेटिंग फॉर द टैक्सी एंड इट्स वेरी वेरी कोल्ड. हाँ वैसे बहुत ज़्यादा ठंड है एंड दिस लाइक यू नो टू विंडी ऑल्सो. और यू नो जैसे कि पिछले 2 दिन तो इतनी गर्मी थी एंड यू नो इट वाज वेरी प्लेजेंट, बट आज इट्स लाइक एज आई सेड रेड अलर्ट हो रखा है एंड स्कूल्स आर ऑफ. यू नो क्योंकि थंडर स्टॉर्म बहुत ज़्यादा कल रात को भी लाइक यू नो आई कुड नॉट इवन स्लीप वेल बिकॉज इट वाज सो स्कैरी. बट आई एम वेटिंग फॉर द टैक्सी नाउ. और अभी मुझे बस निकाल दो यहाँ से, ऐसा वाला हो रखा है. थैंकफुली आई एम लाइक पैक्ड विद जैकेट एंड ऑल, बट ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है भैया. आई एम लाइक इट्स फ्रीजिंग, इट्स रियली रियली कोल्ड. सो आई एम वेटिंग फॉर द टैक्सी नाउ. फिर यहाँ से देहरादून जाऊँगी. पीछे आप देख सकते हो राइट कि कैसा भयानक सा दिन हो रखा है, पूरा काला. मतलब ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा ठंड हो गया था. अब तक तो ऐसा लग रहा था कि बस निकाल लो. फाइनली भैया भी आया काफ़ी लेट. 12:30 बजे मेरा बस था फ्रॉम देहरादून. बट यू नो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि भैया जो पिक करने आने वाले थे वो भी काफ़ी लेट आया. उसके बाद उसने भगाया गाड़ी. इतना डर लग रहा था मुझे. आगे बैठी हुई थी एंड आई वॉज जस्ट सो स्केर्ड द होल टाइम कि इतना बार मैंने उसको बोला कि भैया आराम से चला लो, आराम से चला लो. बट भैया उसने इतना तेज़ भगाया जस्ट टू मेक श्योर कि मैं पहुंच जाऊँ टाइम पे. एंड लिटरली यू नो 12:35 को पहुंचा दिया उसने. अगर नहीं पहुंचाता तो शायद बस मुझे छोड़ के निकल जाता उस दिन. बहुत ही स्कैरी राइड था उसका, बहुत रैश एंड फास्ट ड्राइविंग. बट थैंकफुली आई रीच्ड लाइक ऑन टाइम. मैंने स्लीपर वाला सीट बुक कर रखा है. सो इसमें ना डबल सीटर भी है ऐसे बैठ के जाने वाला और एक है स्लीपर वाला. मैंने स्लीपर वाला बुक किया था एंड इट्स गुड एंड द बस इज़ वेरी कंफर्टेबल. मतलब ब्लैंकेट भी दे रखा है फॉर अ चेंज एंड दैट्स व्हाट आई एम गोना डू. बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है. सो मे बी यू नो आई विल जस्ट लाइक स्लीप फॉर अ व्हाइल. इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड आई एम फीलिंग हंग्री ऑल्सो. तो लकली यू नो थैंकफुली मैंने कुकीज़ you know खरीद रखा था कैफे हिंज से. आई एम जस्ट गोना ग्रैब दैट, ईट सम एंड देन आई एम जस्ट गोना स्लीप जब तक ये लोग लंच के लिए रोकते नहीं हैं. आई एम फीलिंग सो रिलैक्स फाइनली एंड आई एम ग्लैड दैट यू नो आई एम गोइंग बैक फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि अभी मसूरी में बहुत ज़्यादा ठंड है. इट्स लाइक रियली रियली कोल्ड एंड आई वॉज नॉट वेल इक्विप्ड इनफ वहाँ पे एक और रात निकालने के लिए.
And I guess yeah, so the vacation ended. It was pretty nice. Mussoorie मुझे काफ़ी अच्छा लगा, you know. Besides that, it was overcrowded. I don't know for what good reasons. अब मैं तो पहली बार गई हूँ, तो मुझे नहीं पता कि ऐसा ही होता है या फिर it was because of the long weekend. But बहुत ज़्यादा crowded था. And but overall the Mussoorie अगर मैं देखूँ तो it was pretty, it was very beautiful. That's what I liked, and I hope you guys enjoyed watching the video, and you know, do not forget to give a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you guys, bye bye, take care.